काय कल्याण निवेदितेनां श्रीवेंकटनिवासाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो सर्वस्याब्दे सर्वसिद्धे सर्वमेव
अपना तटे मैं जा रहा हूँ बहुत तटे எல்லாத்தையும் விநாயகர் எல்லா பந்தத்திலும் சுற்றி வந்துட்டு இந்த முட்டை வச்சுட்டு மூணாவதி நடக்கும். மூணாவதி நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி மகா சங்கல்பம், சங்கல்பத்தை கும்பாபிஷேகத்துக்காக சங்கல்பம் எல்லாரும் இங்கே வந்துட்டு சங்கல்பத்துக்கு உட்காந்துட்டு சங்கல்பத்தை எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் மூணாவதி நடத்தி அதுக்கப்புறம் சேர்ந்து எல்லாரும் கேட்ல தான் முதல்ல ராஜகோபுரத்துக்கு தான் முதல்ல கும்பாபிஷேகம். அவாவா கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு அவங்க எல்லாரும் ராஜகோபுரத்துக்கிட்ட போய் நின்றுடும். அதுக்கப்புறம் யாருக்கு சொல்றோ அவெல்லாம் முட்டை எடுத்துட்டு கலசத்தை சன்னதிக்கிட்ட கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு எல்லா சன்னதி பக்கத்துல எல்லாரும் நின்றுடும். வேதம் நடக்கும். ஆனால் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் டைம்ல இதுவும் நடக்கும். அதனால எல்லாரும் கும்பாபிஷேகத்தை முடிச்சுட்டு 10 மணிக்கு அதுக்கப்புறம் வீட்டை எல்லா ஆலயத்தையும் கிளம்பலாம். அதனால இப்போ முதல்ல இங்கேருந்து ஊர்வலமா யாராவது ஏதாவது சொல்லுங்க, ஏதாவது ஒரு இது சொல்லுங்க, அப்படியே போயிட்டே போங்க. எல்லாரும் யாராவது ஒரு லீடர்ஷிப் எடுத்துக்கோ. எல்லாரும் எடுத்துட்டு போவோம். அதுக்கப்புறம் சாயங்காலம் நீங்க எந்த கும்பாபிஷேகமும் எல்லாரும் இந்த தூரம் வந்துட்டு இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன். அந்த கல்யாண உற்சவத்தை வந்து கேட்டால் ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை. அது மாதிரி ஆகிடும். அதனால எல்லாரும் கல்யாண உற்சவத்துக்கு வந்து இதை பிரயோஜனம் பண்ணணும். இப்போ எல்லாரும் அப்பாப்பா தட்டு இல்லாட்டாலும் பரவாயில்ல, எல்லாரும் இங்கே வெளியில் வச்சு கொஞ்சம் நின்றுக்கும் ஃபோட்டோகிராஃப் எடுப்பா எல்லாரும் குரூப்பாக ஆபத்துக்கிட்ட அப்படியே டேரக்ஷனில் நிறுத்திடுவோம். எல்லாரும் கோபிகா 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 राम नाम वरान श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे रत्न नाम तत्तुल्यं राम नाम वरान्नमे श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे रत्न नाम तत्तुल्यं राम नाम
रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं मनोरमे श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे
रामाचार्यः वेदिकायां स्वाहा विरोधार्यं शिवाचार्यः पद्मावत्याचार्यः पद्मावतीदेवी स्वाहा विरोधार्यं उत्सवस्थाने देवी आचार्यः देवी विशालानन्दम् अर्घ्यं दद्यात् अष्टविद्येश्वराणां सर्वस्थाने उपसाधकः गोविन्दा समीपं गोविन्दा गोविन्दा பூர்ணாவதி இந்த பூர்ணாவதி வந்து நேரம் சரியாக 9 ஆகின்றன. இன்னும் 1 நேரத்திற்குள்ளாக அனைத்து முக்கியங்களும் சிறப்பான முறையிலே நாம் அனைவரும் ஆவாதற்காக மகாபாரதியும் நாம் இப்போது கண்டறிந்து போகிறோம். அதற்கு முன்னதாக யாத்ராதாரம் மகா சங்கல்பம் என்று பெயர். அனைத்து குடங்களும் அனைத்து தெய்வங்களையும் யாகசாலையிலிருந்து மூலஸ்தானத்திற்கு அழைத்து கொண்டு வருவதற்கு யாத்ராதாரம் அனைவருக்கும் அனைத்து சௌக்கியங்களும் கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்த நேரத்திலே கும்பாபிஷேக மகா சங்கல்பம் என்று பெயர். அதை இப்போது நாம் செய்ய போகிறோம். இந்த சங்கல்பத்தை முடித்து ஆர்த்தி தீபாவளி செய்யப்பட்டு முதலிலே முன்பு கூறியவாறு இன்னும் அதை தொடர்ந்து எல்லா விமானங்கள் விநாயகர் முதற்கொண்டு அனைத்து விமானங்களுக்கும் மகா கும்பாபிஷேகம், அதை தொடர்ந்து மூலஸ்தான கிரகங்களுக்கு மகா கும்பாபிஷேகம் தெரிவிக்கப்பட்ட அனைவருக்கும் தீர்த்த பிரசாதங்களும் மற்ற நூறு கும்ப பிரசாதங்களும் வழங்க உள்ளார்கள். இப்பொழுது யாத்ராதார சங்கல்பம் நமக்காக நமது குடும்பத்திற்காக சொல்ல உள்ளது. पुष्पाणि विहिता तद्रमपानं हि पुरुषे मंगलकर नाम संवत्सरे दक्षिणाग्ने सदा आत्मस्तु श्रेष्ठतः सम्यवादर सुनिताय उपमोनिशुद्ध सुनिताय शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं करण विशेषेण सुनिताय अद्यां शुभविभो श्री गणपत्यादि समस्त परिवार कुम्भाभिषेक कर्मणि गोत्रम नक्षत्रम नाम भार्य नक्षत्रम नाम मगन मगल पुत्र पुत्री नक्षत्रम आरोग्य ऐश्वर्याण अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम श्री महागणपति कृपया सर्वकार्येषु निर्विघ्नता प्राप्त्यर्थम वल्ली देवसेना मित्रशत्रु अमित्रशत्रु अनुकूल शत्रु प्रतिकूल शत्रु इत्यादि सर्व शत्रु उपद्रव निवृत्त्यर्थम विशेषतः गृहेपि समस्त कल्याण समृद्ध्यर्थ श्री पद्मावती महालक्ष्मी कृपया मम गृहेपि लक्ष्मी कटाक्ष सिद्ध्यर्थम श्री लक्ष्मण सीता देवी हनुमत समेत प्रेम पाश अभिवृद्ध्यर्थम श्री बालाजी नामांकित महाविष्णोः परिपूर्ण प्रसादेन मम मनसि संकल्पित सर्वकार्य जयत्न सिद्ध्यर्थम अनुष्ठीयमान महाकुम्भाभिषेक हिरण्यगर्भ कर्तव्यं ज्ञानबीजं विभावतोः अनंत पुण्य फलनं मनश्शान्तिं विरचमे इदं सदक्षिणानं तथाकूलम् आदित्यादि नवग्रह देवता
हाँ यहाँ पर तो बढ़िया है, यहीं से हो जाएगा।
वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। Yeah.
जय श्री राम। हुआ यार बनी जी, अरे लो यार प्रसाद।
क्षेत्रे बालाजी विष्णोः अनुग्रहेण च श्रीदेवी भूदेवी नानालंकृतदेव्याः सहितस्य श्री महाविष्णोः अनुग्रहेण मंगलसमये अनुष्ठित भावनोद्भाव विवाह मंगल कर्म मध्ये संभाविते यद्यपि मंत्रतंत्र क्रियाणि में श्रद्धा भक्ति त्रिविलोके च एकोक्तं यथा शास्त्रं पुष्टं साङ्गं सुखम् मंगलम नीललोचना ब्रह्माजा आहुतीर्थं व्रजामि ततः लक्ष्मी साम्राज्यदाः प्रसिद्धिः श्री पद्मावती समयश्री वेङ्कटाद्रि प्रसादात् बालाजी धाम बना हुआ है। इसका 24 साल पूरा होकर आज ये तीसरी बार ये कुंभाभिषेक का संपन्न हुआ है। जैसे आपको सभी को मालूम है, हर 12 साल में इसका आयोजन होता है। ये एक पवित्र धार्मिक कार्यक्रम है जिसमें हर 12 साल में अपने को पूरा इस तरीके का कार्यक्रम करना पड़ता है। और इसके आयोजन के लिए जो कांची से पधारे जो आचार्यगण हैं 16 लोग, वो लोग अपने कांची से ही कोविड-19 के संदर्भ में भी वो लोग वहाँ से यहाँ तक आए और इस कार्यक्रम को संपन्न कराया। इसके लिए मैं उन सभी लोगों का आभारी हूँ जो आके यहाँ पे इस कार्यक्रम को संपन्न कराया। और इसी के साथ साथ इस साल बहुत दिनों से अपने जबलपुर के जो धार्मिक जो लोग हैं उन लोगों को बहुत इच्छा थी कि बाहर से मंदिर पीछे की तरफ होने के कारण एक राजगोपुरम तमिल में बोलते हैं मुख्य द्वार, ये द्वार जो है उसका बहुत दिनों से सोच रहे थे, गलता जा रहा था और आखिरकार वो आज यहाँ पे आप लोग के संरक्षण संपन्न सवेरे सवेरे वर्ग का एक स्तंभ खड़ा किया है। इसके लिए मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने सब खूब तन मन धन के साथ योगदान किया और इस कार्य को संपन्न कराया। इसके लिए मैं उनका भी आभारी करता हूँ। और साथ ही साथ डॉक्टर साहब यमदार साहब हैं, इनके पहले दिन से जिस दिन से इस मंदिर का स्थापना हुआ है उस दिन से अपने साथ जुड़े हुए हैं। और ये जो है जब भी इनके पास जाते हैं कभी भी उन्होंने किसी तरह का भी बोले जो आज्ञा हो उसको पूरा करूँगा करके उसी तरीके से उन्होंने हर साल जो भी कार्यक्रम अपना धार्मिक कार्यक्रम होता है बढ़ चढ़ के वो भाग लेते हैं। और इसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ कि सभी लोग की तरफ से, ताकि निरंतर ये सहायता उनके साथ अपने साथ बना रहे। और इसी समय में 2 मिनट के लिए वो अपने मार्गदर्शन के लिए और आगे के कार्यक्रम में कोई रद्दो बदल या थोड़ा सा और उन्नति करना हो उनके मार्गदर्शन का। व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। आज यहाँ इस अत्यंत पावन परिसर में भगवान श्री बालाजी, श्रीदेवी भूदेवी, भगवती पद्मावती और अन्य देवताओं की उपस्थिति में आप सब सुधीजन, भक्तजन और हमारे अत्यंत सम्मानीय मामा जी और उनकी श्रीमती जी, उनका पूरा परिवार यहाँ उपस्थित कांची से पधारे हुए ऐसे पुरोहित वास्तव में देखा जाए तो पूरे भारत के अंदर
यदि अत्यंत शुद्ध और सात्विक कर्मकांड कहीं शेष है तो दक्षिण भारत में है। हम सब जानते हैं कि उत्तर भारत में बार बार जो मुगलों के आक्रमण हुए और जो अंग्रेजों के द्वारा कलकत्ता में और मुगलों के द्वारा दिल्ली में जो सल्तनतें स्थापित की गई, उसके कारण हमारा उत्तर भारत का कर्मकांड थोड़ा दूषित हो गया है। परंतु दक्षिण भारत में वो कर्मकांड अभी भी उतना ही पवित्र, उतना ही शुद्ध और उतना ही सुरक्षित है जितना आज से लाखों वर्षों पूर्व हमारे इस देश में था। हमारे देश की अनेक परंपराएं हैं, उनमें ये एक अत्यंत सुंदर परंपरा है कि प्रति 12 वर्ष भगवान के विग्रह का पुनः स्थापना की जाती है, उसको अभिषेक किया जाता है और इसी बहाने उस विग्रह के आसपास की साफ सफाई, उसका नवीनीकरण, उसका नूतनीकरण, उसके अंदर कोई सुधार की आवश्यकता हो तो सारा कार्य किया जाता है। तो इस प्रसंग के दोनों आयाम हैं। इसके व्यावहारिक यानी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी हैं और इसके धार्मिक और आध्यात्मिक एस्पेक्ट्स भी हैं। किसी भी विग्रह के अंदर जब हम किसी देवता का आवाहन करते हैं तो उस विग्रह के अंदर उस देवता की जो शक्ति रहती है वो लगभग 12 वर्षों तक विद्यमान रहती है, ऐसा हमारे शास्त्रों ने कहा है। और इसलिए 12 साल के बाद उसको एक बार रिचार्ज करना पड़ता है। रिचार्ज करने के लिए यह हमारे पुरोहित, अत्यंत विद्वान ब्राह्मण दक्षिण भारत से यहाँ पधारे और विधि विधान से अत्यंत सुंदर तरीके से आज इन्होंने पूरा कार्यक्रम पिछले 3 दिनों से यहाँ पर संपन्न किया। तो सबसे पहले तो मैं उनका स्वागत करता हूँ, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और संस्कार धानी की धरती से उनको प्रणाम करता हूँ। इस मंदिर के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आने के बाद यहाँ के जो स्पंदन हैं, जो यहाँ के वाइब्रेशंस हैं, वो हमें बता देते हैं कि प्रत्यक्ष देवता यहाँ पर विराजमान है। उनका अनुभव, प्रत्येक देवता का यहाँ का विग्रह और यहाँ पर जो निरंतर उनकी सेवा में रहते हैं वो हमारे जो पुरोहित हैं, यहाँ का क्या नाम है, मुकुंद जी, उनका अत्यंत सुंदर यहाँ पर संचालन ये सब रहता है। पर आप सबके बिना ये जो मंदिर है, ये मंदिर उत्तरोत्तर प्रगति नहीं करेगा। मुझे आज एक बड़ी संकट में डालने वाली घटना के बारे में बताया कि मामा जी यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर, चेन्नई की ओर प्रस्थान करने वाले हैं, ऐसा मैंने सुना। तो मुझे लगा कि उनकी अनुपस्थिति में कैसे होगा इस मंदिर का। तो फिर एक क्षण में उसका उत्तर भी मिल गया कि जब भगवान किसी व्यक्ति को दूसरी जगह ले जाते हैं तो उसका रिप्लेसमेंट भी खुद ही भेजते हैं, तो उसकी बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो रिप्लेसमेंट मामा जी के लेवल का तो नहीं होगा। अब मामा जी पीएचडी हैं तो वो रिप्लेसमेंट जो है वो ग्रेजुएट होगा या पोस्ट ग्रेजुएट हो सकता है। तो आप में से ही किसी को आगे आना पड़ेगा। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं और अत्यंत विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि आज से 24 वर्ष पहले इस मंदिर के स्थापना के समय भी मैं यहाँ पर आया था, उसके बाद भी आया, आज भी आया और अगले 12 वर्ष के बाद भी आऊंगा। के जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतने लोग जुड़ जाएं और आने वाले समय में और भी लोगों को उनके अभी तक जो कमी थी उसको धीरे धीरे पूरा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और जो भी कमियां और रहेगी आने वाले समय में उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और किसी को भी कोई सुझाव है वो सुझाव ज़रूर अपने साथ बताएं ताकि उस सुझाव को भी
ध्यान में रखते हुए आगे के कार्यक्रम आपको रूपरेखा सब बता दी जाती है। तो आज का कार्यक्रम के लिए विशेषतः है जो आचार्यगण वहाँ से आए और उन्होंने यहाँ पर पधार के सुंदर कार्यक्रम को उन्हें संपन्न कराया, उसके लिए मैं सबके तरफ से उनका आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही साथ आप लोग का भी दिल के साथ मैं आभार प्रकट करता हूँ, ताकि क्योंकि एक दिन पहले दिन से ही ये कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए और जो आपने प्लान बनाया था उसको पूरा करने के लिए योगदान जो आप लोगों ने दिया, उसके लिए भी मैं सबके लिए शायद दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और इस कार्यक्रम को निरंतर जैसा बताया वो चलता रहे और हर कार्यक्रम धार्मिक कार्यक्रम की रूपरेखा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, जितना हो सकता है अपन सभी लोग उसको और अच्छे विभिन्न लोगों को भी सम्मिलित करके इसको धार्मिक, क्योंकि आज के ज़माने में ये बहुत ज़रूरी रह गया है, इस कार्यक्रम को निरंतर और आगे बढ़ाते जाएं, इसके लिए मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ। और आज की सभा इसके साथ जो है खत्म, धार्मिक जो कार्यक्रम है इसके साथ समाप्त हो रहा है। और मैं सबके तरफ से फिर से एक बार कांची से पधारे उनके और जितने विशिष्ट अतिथिगण हैं वो लोग जो आए के पधारे इस कार्यक्रम को संपन्न कराया, उन सबके लिए मैं आभार प्रकट करते हुए ये मंडलाभिषेक होते हैं, मतलब जो मूर्तियाँ भी कल बाहर निकली थी अब उसे रिस्थापित किया था, उसके जीवन दान और उसको ये करने के लिए आपका